Good evening. Do you approve? Well, let's see if you really do approve. All right. When I raise my hands up in the air like this, you clap one. When I drop my arms, you clap one. When I raise them up, you clap one. All right, let's try it. You ready? You approve. Thank you. The week went by too quickly. ये हफ्ता बहुत तेजी से गुजर गया है. I just want to say again how much I've appreciated being here. मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी है, शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला इधर आने का. I thank the Lord publicly for bringing me back to you. और मैं खुदावंद का सबके सामने शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि खुदा मुझे आप लोगों के पास लेके आए. I thank the Lord that He allowed CP Way. Stand up, CP Way. और किसी भी वे भी आ सके. What do you think of that? Okay, and yeah, and Mondla. Where's Mondla? Right here. Oh, in front of me. I thank the Lord that God allowed these two men from South Africa to accompany me. और मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने इन दो आदमियों को मौका दिया कि वो मेरे साथ आ सके इस ट्रिप पे. Didn't you enjoy meeting these men? क्या आपको अच्छा लगा इनको मिलकर? Amen. They're a lot of fun. They're a blessing to me back in South Africa. मेरे लिए दोनों बहुत बरकत का सबब है साउथ अफ्रीका में. So thank you for your faithfulness tonight. तो आपकी वफादारी के लिए शुक्रगुजार है. What I'd like to do for the last message is I want to, the best I can, I want to make the message simple so you can understand it very clearly. There's a lot of confusion about being born again. मैं चाहता हूँ कि चूंकि ये आखिरी मैसेज है स्पेशल सर्विसेज में, जितना आसान मैं इसको कर सकता हूँ मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारी गलत तालीमात भी है और लोगों को कंफ्यूजन है नए सिरे की पैदाइश के बारे में. And when you just let the Bible interpret itself, it's not confusing. और जब बाइबल को ही आप इस्तेमाल करते हैं बाइबल का तर्जुमा करने के लिए, बाइबल को सिखाने के लिए, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होती. God is not the author of confusion. ये खुदा की तरफ से कंफ्यूजन याद रखिए कभी भी नहीं होती. All right, let's read John 3. आइए देखें यूहन्ना की इंजील 3 बाब Verse 1. पहली आयत. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस यहूदियों का एक सरदार था. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, we know that thou art a teacher come from God. हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है. For no man can do these miracles that thou doest except God be with him. क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब Now तक remember खुदा from- उसके साथ ना हो. Remember from last night, Nicodemus is a believer. याद रखिए ना, हम याद है बलीवर के बारे में जो देखा था कल के, वो भी तो है ये. Remember, many believed in his name when they saw the miracles which he did. कलाम में लिखा है बहुत सारे ईमान लाए उसके जब उन्होंने मौजज़े देखे. Look at verse 24 of chapter 2. अच्छा, दूसरे बाब की आप देखें 24 आयत को. But Jesus did not commit himself unto them because he knew all men. I want to say more about that. लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार ना करता था इसलिए कि वो सब आदमियों को जानता था. ये वही है बिलीवर्स जिनको कहा जाता है, इसके बारे में और भी बताएंगे. ये Jesus Christ, who knows the hearts of all men, he saw within the many there was something that was not right, not sincere, it was not saving faith, because their faith was based on sight. मसीह ने पता है क्या देखा? उनका ईमान किस चीज पर मबनी था? जो उन्होंने देखा था. और क्योंकि उन्होंने देखा था इस वजह से ईमान, तो इस वजह से हालांकि ग्रुप बहुत बड़ा था लेकिन मसीह उससे सेटिस्फाइड नहीं थे. ये Jesus did not commit himself unto them. और कलाम में लिखा है कि उसने अपनी निस्बत पर यानी कि अपने आप को वहां ज्यादा दे नहीं रखा. I will say this. Jesus does commit himself
unto his truly born again children of God. हाँ, जो वाकई नई पैदाइश को पा ले, कलाम में क्या मिलता है कि वो उनको कभी छोड़ते नहीं है, हमेशा उनके साथ रहते हैं. The Bible says Jesus loved his own and he loved them unto the end. कलाम में मिलता है कि मसीह अपनों से प्यार करते थे, और पता है कब तक प्यार करते थे? एंड तक. The Bible says, I will never leave thee nor forsake thee. कलाम में बड़ी सफाई से मिलता है, मसीह ने कहा था मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा. Jesus Christ was committed to his disciples like a bridegroom to his bride. मसीह पता है अपना शागिर्दों के साथ कैसे अटैच थे, जैसे एक शौहर एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ है. But these here, the many, लेकिन यहाँ पे जो बहुत सारे हैं, he did not commit himself unto them, उसने अपने आप के उनके साथ किसी किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं की, but they believed in his name. लेकिन वो उस पर ईमान रखते थे. Maybe you're here tonight and you believe in Jesus' name. हो सकता है आप इधर मौजूद हैं और आप यीशु मसीह के नाम पर ईमान रखते हैं, You would claim to be a believer. और आप कहते हैं मैं तो ईमानदार हूँ, बिलीवर हूँ. Well, Nicodemus is one of these believers. वह निकोदेमस भी इनमें से ऐसा ही है. Now, when Nicodemus gave all of these nice comments to Jesus, अब जब निकोदेमस ने ये मसीह की बड़ी तारीफ की, अच्छे कमेंट्स उसके बारे में मेंशन किए, Jesus never acknowledged it. मसीह ने कभी उसको जिसे कहना है तस्लीम नहीं उन कमेंट्स को किया. Did you hear me? सुना है ना आपने? He never acknowledged what Nicodemus said. जो निकोदेमस ने मसीह के बारे में कहा था, हालांकि तारीफ ही की थी, मसीह की कोई ऐसी उस पर रिस्पॉन्स नहीं. Even though what Nicodemus said was true. जो निकोदेमस ने कहा था वो सच्ची बात थी. You're a teacher. You come from God. उस्ताद है, खुदा की तरफ से आया है. No man can do the miracles that you're doing. You're more than a man. कोई भी आदमी ऐसे मौजज़े नहीं कर सकता, तुम आदमी से ज्यादा हो, खुदा हो. Jesus never acknowledged it. मसीह ने कभी नहीं कहा हाँ भाई आपने बहुत अच्छा कहा है. God will not receive your worship unless it's spirit and in truth. Remember that. याद रखिए ना कि जब तक रूह और सच्चाई ना हो, खुदावन जो है इस तारीफ को भी कबूल नहीं कर सकते. Jesus looked at Nicodemus eyeball to eyeball and he said, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. निकोदेमस ने क्या कहा? मसीह ने उसको आंखों में देखकर कहा कि जब तक कि कोई नए सिरे से पैदा नहीं होगा, वो खुदा की बादशाही को देख ही नहीं सकता. Listen, Jesus wasn't concerned about pleasing Nicodemus' feelings. अब अगर मसीह की बात करें तो वो उसको ये नहीं था कि मैं भाई इसके एहसासात या इसको कहीं इसके फीलिंग्स को हर्ट ही ना कर दूं. He got right to the point. उन्हें तो असल बात करनी थी, वो की. And really what he's saying is, Nicodemus, you're lost. पता है वो क्या कहते हैं? निकोदेमस तुम गुमराह हो. Pastor Nicodemus. पास्टर निकोदेमस. What did Nicodemus say? निकोदेमस ने फिर क्या कहा? Look at your Bible. बाइबल, अपनी बाइबल को देखें. Nicodemus saith unto him, and what is the first word that comes out of his mouth? अब निकोदेमस ने उससे कहा, पहला लफ्ज क्या निकलता है? First word. What's the first word? Nicodemus saith unto him, what's the first word? Oh, in English. No. No. Hello, people. Verse 4. Nicodemus saith unto him, he was just told he had to be born again. Nicodemus saith unto him, how? उसने जो पहला सवाल किया कि कैसे? Born again? नई पैदाइश? Born again? दोबारा पैदाइश? How? कैसे? How can a man be born when he's old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? क्या वो आदमी जब बूढ़ा हो गया तो कैसे वो दोबारा पैदा, क्या वो अपनी माँ के पेट के अंदर दोबारा जा सकता है? Now, if this wasn't so serious, अब अगर ये हो सकता है इतना अहम ना होता, I could imagine Jesus Christ and hearing a response like that, तो हो सकता है रिस्पॉन्स ये भी हो सकती थी, himself responding with,
हो सकता है निकोदेमस हंस रहा था, ये क्या कह रहे हैं नए सिरे से पैदा होना, Going into my mother's womb again and coming out? Come on. कि मैं अपनी माँ के पेट के अंदर दोबारा जाऊँ वापस, ये क्या है? You're too big for that, Daniel. डैनियल आप बहुत बड़े हो अब. But listen, that's his understanding. लेकिन ये उसकी समझ है. And notice, Nicodemus is an old man. निकोदेमस जो है ना बूढ़ा हो चुका है. He didn't become a Pharisee last week. यह पिछले हफ्ते भी फरीसी नहीं था बना. He had been teaching the way of the Lord for a long time. वो तो कई सालों से खुदावंद की राह लोगों को सिखा रहा है. He was confused. वो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि कंफ्यूज हो गया था. Jesus answered, Verily, verily, truly, truly, I say unto thee, except a man, now listen to it, except a man be born, birth number one, of water, and birth number two, of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. अब देखें यहाँ क्या लिखा है. यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी से ये पहला और रूह से ये दूसरा पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता. So Jesus Christ is giving more information. सो अब मसीह क्या कर रहे हैं और ज्यादा मालूमात दे रहे हैं इसके बारे में. Jesus is telling Nicodemus, there's two births. मसीह निकोदेमस को क्या कह रहे हैं? दो पैदाइशें हैं. One of water, एक पानी की है, one of the Spirit. एक रूह की है. Now I have a question for you. अब एक सवाल है आपके पास. What does it mean to be born of water? अब आप ये बताएं कि पानी की पैदाइश What क्या do you है? think? क्या आपका क्या ख्याल है? क्या Of है water. What do you think? आपका क्या ख्याल है कि कोई आदमी पानी से पैदा हो? क्या मतलब है इसका? Born of water. There is a birth that is connected with water. What एक birth is it? पैदाइश है जो पानी से कनेक्टेड है. क्या है वो? What does it mean to be born of water? क्या मतलब है इसका? Okay, that's one possible interpretation, but let's go by what the context says. अभी हम कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे क्या है ये. There are three theories. Number one, Cosmetics said the water is the baptism. Number two, water is the word of God. Number three, you say water is born again, flesh, meaning बच्चे का पैदा. Okay. Natural birth. The third one he said. Yeah. The third one is correct. तीसरा सही है. I do know that the Word of God is compared to water in Ephesians chapter 5. हाँ, You see that. ये बेशक हमें मिलता है. वाकई खुदा के कलाम को पानी के साथ कंपेयर किया गया इफिसियों उसके 5वें बाब में. I'm not discrediting that. तो इसको हम किसी तरह से डिस्क्रेडिट नहीं कर रहे. But in the context, लेकिन यहाँ पे आप देखें क्योंकि वो पैदाइश की बात कर रहे हैं. there's only one person who can explain for me and you what it means to be born of water. There's only one person who can do that. Who is it? एक शख्स है जो बयान कर सकता है पानी से पैदा होने का क्या मतलब है. कौन There's है? only one person who can tell me what that means. Who is it? एक ही है. It's Jesus. You know why? It's simple. He's the one who said it. मसीह उसको बयान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने तो कहा है कैसा है. I didn't say it. He said it. मैंने तो नहीं कहा है, तो मसीह ने कहा है. So Jesus, you've got to tell me what you mean. सो यीशु आप मुझे बताओ कि इसका क्या मतलब है. And he does. और वो बताते हैं. Next verse 6. अगली आयत को अब आप देखो. Listen to it. That which is born, birth number 1, of the flesh. अब देखो शुरू में क्या लिखा है. पहली बर्थ को कैसे बयान किया. अगली आयत को आप खुद देखें. जो जिस्म से पैदा हुआ है, जिस्म है. It's flesh. ये जिस्म है. And that which is born, birth number 2, और- of the Spirit is spirit. और दूसरी बर्थ को देखें क्या बयान किया गया है. और जो रूह से पैदा हुआ है, रूह है. Jesus gives the interpretation. The water birth is the flesh birth. सो मसीह इसके बारे में बड़ी सफाई से बयान कर देते हैं कि जो पानी से पैदा होना है ना, ये पता है कि अगली आयत में क्या लिखा है, वो जिस्म की पैदाइश है. All right, let me talk to you mothers. ठीक है. अब आप जो मदर्स हैं आपसे बात करते हैं.
You remember when you were great with child? आपको पता है जब आप उम्मीद से थी You're sticking out the ear. और पेट ऐसे निकला हुआ है. Do they have trolleys here at the grocery store? Some do. Okay. You're great with child. And you've got your trolley. Have you ever noticed how pregnant women walk? अब बता हमला औरतें अक्सर कैसे चलती हैं. Now, God's a wonderful God, and in His creation, God gave you mothers a lot of respect by giving you a warning that soon, baby's coming, baby's coming, baby's coming, prepare, prepare, prepare. That's the warning. अब खुदा माओ को पता है क्या करता है, एक आगाही दे देता है. उनको माओ को पता होता है तैयार करो बच्चा आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है. The water breaks. जो पानी जिस पेट के अंदर जो पानी होता है वो हम कह सकते हैं निकल जाता है. Now just think if God didn't give you that warning. सोचिए तो अगर खुदा आपको ये वार्निंग ना दे You'd be at the market. और आप मार्केट में हैं. Right in front of the rice and everything else. The water birth is the flesh birth. So ये हमें बड़ी सफाई से कलाम में मिल जाता है कि ये जो पानी से पैदा होना है ये जिस्मानी पैदाइश है. We have two births, a flesh birth, spirit. So एक जिस्मानी पैदाइश है और एक रूहानी पैदाइश है. Now let me say this. Every single year, I get to celebrate two birthdays. So हर साल जो है अपनी बात कर रहे हैं कि मैं 2 सालगिरह मनाता हूँ. My first birth is March 19th. पहली उनकी पैदाइश मार्च 19 है. March 19th, 1963. Are you wondering how old I am? आप क्या जानना चाहते हैं मैं कि उम्र कितनी है? How old do you think I am? आपका क्या ख्याल है मैं कितने साल का हूं? बता आमिर आप बताएं कितने साल के हैं? Thank you. Thank you. All right, I'll tell you, I'm 61. 61 के. Yeah. 1963. My second birth, my spiritual birth, is June 22nd, 1982. I have 2 birthdays every year. So इनकी जो रूहानी बर्थ है वो जून में थी 1982 में. Okay, boys over here, how many birthdays do you have every year? Just think. Don't अब answer. आप जो लड़के उधर बताओ क्या आपकी कितनी सालगिरह होती है? How many birthdays do you have every year? आप जितने भी यहाँ बैठे क्या आपकी कितनी सालगिरह? If you've only got one, अगर आपके पास सिर्फ एक ही है you're in trouble. तो फिर आप खतरे में हैं. Now, take your Bible. I want to help you here. This is John chapter 3, right? अब मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ. ये है यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब. And we've looked at verses, I think, 1 through 7. और हमने पहली 7 आयत को देखा है. Marvel not that I said unto thee, you must be born again. That's verse 7. 7वीं आयत में हमें मिलता है कि ताज्जुब ना करो कि मैं तुझसे ये कहा है कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना लाजमी है. Now I'd like you to go to 1 John chapter 3, verse 7. अब आप कलाम में से देखिए पहला यूहन्ना उसका 3रा बाब और उसकी 7वीं आयत. Little children, let no man deceive you. Verse 7. ऐ बच्चों किसी के फरेब में ना आना. He that doeth righteousness is righteous. जो राजबाजी के काम करता है वो Even इसी तरह as- राजबाज है Even as he is righteous. जैसे वो राजबाज है. Verse 8. 8वीं आयत. He that committeth sin is of the devil.
जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, For the devil sinneth from the beginning. क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। Notice verse 9. 9वीं आयत को देखें। He that is born, here's a birth now, a birth. अब यहाँ पैदाइश का जिक्र किया, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है। He that is born of God does not commit sin. For his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। In this the children of God are manifest, and the children of the devil. इसी से खुदा के फर्जंद और अबलीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। Verse 8, he that committeth sin is of the devil. अच्छा, 8वीं आयत में क्या लिखा है कि जो गुनाह करता है वो शैतान से है। Remember, Jesus did not commit himself unto them, the many that believed on his name. याद रखें कि जो बहुत सारे जो कहते थे ना मसीह पर ईमान ले आए हैं, मसीह ने अपने आप को इनको कमिट नहीं किया। And he that committeth sin, or he that is committed to sin, is of the devil. और जो अपने आप को जो गुनाह करता है या जो गुनाह के लिए अपने आप को कमिट करते हैं, कलाम में देखो क्या लिखा है, वो शैतान से, अबलीस से है। What does it mean, people, to be committed? अब अगर कमिटमेंट की बात करें तो इसका क्या मतलब है? Okay, listen. If I am committed to my wife, that means there's no women on the side. अब अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं अगर अपनी वाइफ के साथ कमिटेड हूँ, इसका मतलब क्या है? कोई और औरत नहीं है। I am committed to her. तो इसका मतलब बस वही है। अब I'm loyal to her. मैं उनके साथ वफादार हूँ There's no other women. और कोई औरत नहीं है। Well, if you are committed to sin, और अगर आप इसी तरह गुनाह के साथ मुंसलिक हैं, you're loyal to sin, faithful to sin, you habitually practice sin, you're of the devil. अगर आप गुनाह को छोड़ना ही नहीं चाहते, गुनाह में ही रहना चाहते हैं, उसी के साथ लोयल है, गुनाह में ही वफादार है, जिंदगी गुनाह में गुजार रहे, आप अबलीस से हैं। You're a child of the devil. आप अबलीस की औलाद हैं। Now we have two births, right? अब दो पैदाइश है। What's the first birth? पहली पैदाइश कौन सी है बताएं? Birth of the flesh. जिस्म की पैदाइश। The second birth, birth of दूसरी पैदाइश the spirit. रूह की पैदाइश। Okay, listen, if there's two births, अगर दो पैदाइश है, there has to be two families. इसका मतलब दो खानदान भी हैं। Children of the devil, children of God. अबलीस के फर्जंद, खुदा के फर्जंद। Two births, two families. दो पैदाइशें, दो खानदान। So very plainly stated, if you have not been born again, you're still born of the flesh, you're in the devil's family, and Satan is your spiritual daddy. तो अब इस चीज को गौर से सुने। अगर आपने दूसरी पैदाइश को नहीं पाया ना, इसका पता है क्या मतलब है? आपकी सिर्फ जिस्म से पैदाइश हुई है और आप अबलीस को मानते हैं, अबलीस की जिसे कहते हैं हर तरह से उसकी फरमाबरदारी करते हैं, और आप अबलीस से हैं, आप खुदावन से नहीं हैं। Remember what Jesus said to religious people? याद रखिए मसीह ने मजहबी लोगों को क्या कहा था। You're of your father the devil. मजहबी लोगों को कहा तुम अपने बाप जैसे हो, शैतान के। Your father the devil. उसने कहा था तुम्हारा बाप अबलीस, And the lusts of your father you will do. और जो बाप की ख्वाहिशात है वही तुम करोगे। Now how can you be a father if you don't have children? आप एक बाप कैसे बन सकते हो अगर आपके बच्चे नहीं है तो? And he calls the devil a father. और वो शैतान को उनका बाप कहता है। And here the Bible says there are children of the devil. और यहाँ खुदा के कलाम में लिखे है कि अबलीस के फर्जंद है, कि अबलीस की भी औलाद है। He that is born of God doth not commit sin, जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, for his seed remains in him, क्योंकि उसका तखम उसमें रहता है and he cannot sin. और वो गुनाह नहीं कर सकता।
Do you know that if you're saved, there's a nature within you, it is impossible to sin. जब हम नई पैदाइश को पाते हैं तो एक फितरत हम में अब आ जाती है, और वो जो फितरत है ना, वो गुनाह नहीं कर सकती. Do you know who the new man is? तो पता है जो नया आदमी हम में आ जाता है कौन है? Jesus Christ. खुदावंद यीशु मसीह है. Can Jesus Christ sin? अब आप मुझे बताओ, क्या खुदावंद यीशु मसीह गुनाह कर सकते हैं? The Holy Spirit indwells the believer. Can the Holy Spirit sin? बताएं मुझे, पाक रूह हमारे अंदर आके बसता है, क्या पाक रूह गुनाह कर सकता है? बताएं. God can't sin. खुदा तो गुनाह नहीं कर सकता, Jesus can't sin. मसीह तो गुनाह नहीं कर The Holy सकते, Spirit can't sin. पाक रूह तो गुनाह नहीं कर That's सकता. who's dwelling within me. ये तो हम में बसते हैं. The new man नया cannot sin. नया आदमी जो हम में नजात पाने के बाद आता है, वो गुनाह नहीं कर सकता. The flesh, हाँ, लेकिन जिस्म oh yes, the flesh can still sin. लेकिन जिस्म गुनाह कर सकता. And we still have the flesh even though we're saved. बेशक हमने नजात को पाया, लेकिन ये जिस्म अभी भी हमारे पास है. If we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. और अगर हम कहें कि हमने कोई गुनाह नहीं किया तो हम खुद को धोखा देते हैं और सच्चाई हमारे अंदर नहीं है. But here's the miracle of conversion. Here's the wonder of conversion. लेकिन ये है मौजज़ा तब्दीली का. When you get a new nature in you that cannot sin and you are filled with the Holy Spirit, then every time you submit yourself to the Spirit, you will not sin. The new nature cannot sin. अब जब आप में एक नई नेचर आ गई, नई फितरत आ गई है, याद रखिए नई फितरत गुनाह नहीं कर सकती. जब खुदा का पाक रूह हमें मलामत करता है, सिखाता है, और हम खुद को पाक रूह के ताबे कर लेते हैं, तो फिर हम गुनाह नहीं करते. Now, if I submit to the flesh, I'll sin. हाँ, लेकिन अगर हम अपने आप को अपने जिस्म के ताबे कर दें, फिर हम गुनाह करेंगे. But the blessing is we don't have to. लेकिन पता है बरकत की बात क्या है? अब हमें अपने जिस्म के ताबे होने की जरूरत नहीं है. Now, we as believers, if we sin, it's because we choose to, but we don't have to. अब हम जो मसीह में, हम जब गुनाह पता है क्यों करते हैं? अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन चूंकि खुदा बसता है हम में, अगर हम चाहें तो हम गुनाह ना भी करें. And according to 1 John chapter 3, anybody who's still committed to sin, is controlled by sin, has no power over sin, has no victory over sin, you're a child of the devil. और कलाम इस आयत के मुताबिक, गौर से सुने इसको, जो अपने गुनाह पर हावी नहीं हो सकता, गुनाह को छोड़ना ही नहीं मांगता, बल्कि गुनाह में रहना मांगता है, वो खुदावंद की तरफ से नहीं है, वो अबलीस का फर्जंद है अभी भी. All right, I'm going to finish with this last point. और ये जो आखिरी पॉइंट रह गया ना, इससे अब हम पैगाम को खत्म कर देंगे. 2 births, 2 पैदाइश, 2 families. 2 खानदान. But let's go before the birth. लेकिन आए अब इस पैदाइश से पहले की बात करें. How do you have a physical birth? There must be the seed of a man, correct? अब जिस्मानी पैदाइश कैसे होती है? आदमी का तुखम होता है. There must be the seed of the man. लाजमी वो होता है. But you know what? The problem with the seed of the man is a man's seed is corrupt. लेकिन आदमी के तुखम का पता है सबसे बड़ा मसला क्या है? कि आदमी का तुखम तो गंदा है, खराब है. Wherefore, as by one man, Adam, sin entered into the world, and so death passed upon all men, for that all have sinned. A man's seed is corrupt. कलाम में क्या लिखा है? एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, गुनाह के सबब से मौत आई. सो आदमी का तुखम क्या है? करप्ट है, गुनाहगार है, गंदा है. We're all sinners because our fathers are sinners. हम सब पता है क्यों गुनाहगार हैं? क्योंकि हमारे बाप गुनाहगार हैं. Because his fathers are sinners. क्योंकि आगे उनका बाप भी गुनाहगार था, Because his fathers are sinners. आगे उसका बाप भी गुनाहगार. All the way back to Adam. पूरा हम पीछे जाए, आदम तक जाए. So you know what that means? Listen, here's a false belief. I'll put a hole in it. इसका पता क्या मतलब है? अभी हम इस पर देखेंगे. There are those who believe we're all the children of God just because we've been born. अब कई लोगों का ये भी ख्याल है हम सब खुदा की औलाद है क्योंकि खुदा ही तो हमें इस दुनिया में लेके आए. Well, God's my creator. वह खुदा ने मुझे तख्लीक किया है, I was born. मैं पैदा हुआ था, I'm a child of God. मैं खुदा की औलाद हूँ. No, you're not. नहीं, You're a child of the devil by your first birth. आप पहली पैदाइश के सबब से पता है क्या है? अपने बाप की औलाद है और गुनाहगार की औलाद है. We all came from a corrupted seed.
और हम सब पता है कैसे आए हैं? एक करप्ट सीड से आए हैं। Which is why Jesus said, you must be born again. इसीलिए तो मसीह ने कहा था तुम्हारा नए सिरे से पैदा होना You must have a लाजमी second है। birth दूसरी पैदाइश लाजमी है। that comes from God. और ये पैदाइश पता है सिर्फ खुदा से ही आ सकती है। Did you read it? He that is born of God. पढ़ा आपने इसे, वो जो खुदा से पैदा हुआ है। And just like the physical birth comes from a seed, the spiritual birth comes from a seed. आप देखो दोनों पैदाइशें जो है ना, जिस्मानी पैदाइश भी तखम से आती है और इसी तरह रूहानी पैदाइश भी ऐसे ही आती है। Let's go to 1 Peter. आइए देखिए पहला पत्रस, 1 Peter chapter 3. पहला पत्रस, Chapter 1. 1 Peter chapter 1. पहला पत्रस और उसका पहला बाब Verse 23. और उसकी वर्स नंबर 23। Being born again, not of corruptible seed. देखिए क्या लिखा है, क्योंकि तुम फानी तखम से नहीं। That's the birth of flesh. ये फानी तखम क्या है? जिस्म की पैदाइश है। Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God. बल्कि गैर फानी से, खुदा के कलाम के वसीला से। There's the spiritual seed right there. ये है रूहानी तखम जिसका जिक्र किया There's the गया। seed that will bring about the new birth. ये है वो तखम जिससे नई पैदाइश The आएगी, word of God. खुदा का कलाम। You cannot be saved apart from the word of God. खुदा के कलाम के से हटकर आप निजात को पा नहीं सकते। This is the seed. इसी को ही हम कह सकते हैं, इसी की बदौलत पैदाइश हो सकती है, यही वो तखम है। Jesus said this, he that heareth my word मसीह ने कहा वो जो मेरे कलाम को सुनता है and believeth on him that sent me और जिसने मुझे भेजा उस पर ईमान लाता है, hath everlasting life. उसके पास हमेशा की जिंदगी है। For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. क्योंकि जो कोई मेरे नाम को पुकारेगा वो How निजात then shall पाएगा। they call on him of whom they have not believed? तो कैसे उस पर ईमान लाएंगे जिसपे उसको सुना ही नहीं है? And how shall they believe in him of whom they have not heard? और जिसके बारे में अगेन उन्होंने सुना नहीं, कैसे उस पर ईमान लाएंगे? And how shall they hear without a preacher? और मनादी करने वाले के याद रूमियों मिलते हैं, कैसे वो सुनेंगे? Well, tell me, what does a preacher preach? अब आप मुझे बताएं मनादी करने वाला क्या मनादी The करता word of है? God. खुदा का कलाम। Amen. आमीन। Look at verse 25. But the word of the Lord endureth forever. That's the incorruptible seed. And this is the word which by the gospel is preached unto you. लेकिन खुदावंद का कलाम अबद तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। I'm going to end with this illustration. अब मैं खत्म करने लगा हूं पैगाम को इस इलस्ट्रेशन के साथ। Before I came to South Africa, coming from the United States, I did not know what a mango tree looked like. जब मैं साउथ अफ्रीका आया था ना, तो अमेरिका से आया था, तो I'm not मुझे even sure I could tell you what a mango was, except that it's a fruit, but to pick it out and say, oh, that's a mango. I don't know. मुझे नहीं था पता कि आम का दरख्त कैसा होता है, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था। I want to give an example of this. मैं एक We are going to say that a mango tree is you. अब हम ये कहेंगे कि जो मैंगो का दरख्त है वो आप है। You're the mango tree. आप मैंगो दरख्त है, You're the mango tree. आप भी मैंगो दरख्त। Now, if I would have started with you first, I would have said you're a coconut tree. I messed up. So you've got a mango tree, तो एक मैंगो ट्री है and the individual mangoes are your sins. और हर एक मैंगो जो लगा हुआ लेट से है वो गुनाह है। God hates sin, खुदा को गुनाह से नफरत है, so God hates mangoes. सो खुदा को मैंगो से नफरत है। No, not really. असली नहीं, God made the mangoes, amen? खुदा ने मैंगो I love the mangoes. I'm just giving an illustration. मैं सिर्फ एक मिसाल बता रहा हूँ। God hates sin, God hates the mangoes. अब अगर मिसाल के देखें तो खुदा को गुनाह से नफरत है, खुदा को मैंगो से नफरत है। What kind of a tree are you? कैसे दरख्त है बताएं A आप। mango tree. So here's what happens. सो ये होता है, You come to a Bible preaching service सो आप एक ऐसी सर्विस में आते हैं जहाँ बाइबल की मनादी हो रही है and you begin to hear what sin is. और आप सुनने लग जाते हैं कि गुनाह है क्या।
you begin to learn that murder isn't just taking a knife and or a gun and pow, you know. You're learning that you kill people in your heart. गुनाह कत्ल की अगर हम बात करें, खून करना सिर्फ ये नहीं किसी को छुरी से मार दिया जाए या गोली से मार दिया जाए, बल्कि अपने दिल से भी आप किसी को कत्ल कर सकते हैं. You begin to learn that adultery isn't just going to bed with a woman, it's imagining it in your mind. ज़िनाकारी सिर्फ हम बिस्तरी नहीं है, बल्कि अपने ज़हन में इसके बारे में सोचना भी ज़िनाकारी है. You begin to hear what sin is and how bad it is and how much God hates it. और आप सुनने लग जाते हैं जब आते हैं कलाम की कि गुनाह कितना बुरा है, खुदा को कैसे उससे नफरत है. So a person's natural reaction is, oh, I've got to clean up my life. So आदमी का जो रिएक्शन पहले होता है जब वो सुनता है कि मुझे अपने आप को सफाई करने की जरूरत है, I've got to stop my lying. मुझे अपना झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए, I have to stop my gossiping. और मैं जो खुसर पुसर करता हूँ ये भी बंद कर देना चाहिए, I have to forgive people. और अब मुझे दोनों को माफ भी करना पड़ेगा. You know what that means in the illustration? तो इसका मतलब पता है क्या मिसाल में? Here's my mango of lying. Let's take that off the tree. ये झूठ का मैंगो, इसको उतारो दरख्त से. Here's my sin, my mango of pornography. Let's get that off the tree. ये गंदी चीजों को देखने का पैबरे, ये इसको भी निकालना है मुझे. I've got to stop my stealing. Let's take that off the tree. ये चोरी भी मुझे छोड़ देनी चाहिए, इसको भी दरख्त से उतार देना चाहिए. And so we think, if I can stop, get the mangoes off, oh, look at my tree. There's no more mangoes. I've cleaned up my life. And so God is pleased with me, right? तो हम क्या करेंगे? सारे मैंगोज को उतार, इसमें ये गुनाह है, इसमें ये गुनाह है, इसमें ये गुनाह है. अब हम तो दरख्त पे कोई मैंगो नहीं रहा, अब तो खुदा हमसे खुश है, कोई गुनाह नहीं है अब. I mean, when people look at me, they see me as blameless. They can't see the mangoes. There's no open sin for people. Oh, God's happy, right? अब खुदा खुश है मुझसे, क्योंकि जब लोग मुझे देखते हैं तो खुले आम गुनाह नजर तो आता नहीं है. अब खुदा मुझसे खुश है, ऐसा ही है ना? No. नहीं, God's not happy at all. खुदावन तो खुश नहीं है इससे. Don't miss this. Listen. आप इसको मिस ना करें. सुने, The problem with man आदमी का पता है क्या मसला है? is not the individual sins. उसके अपने इनफिरादी गुनाह नहीं है, It's not the individual mangoes. वो एक एक मैंगो नहीं है. The problem is what? मसला पता है क्या है? The tree. मसला दरख्त है. You can pull off the mangoes and stop your sinful habits that are open to man, but hey, by nature, you're still a mango tree. आप जितने मर्जी मैंगो ट्री से मैंगो उतार लें, लेकिन फितरत मैंगो ट्री क्या, वो फिर भी मैंगो ट्री है. And you're going to produce mangoes the next season just the same. और जब अगला मौसम आएगा तो फिर दोबारा मैंगोज आ जाएंगे और वैसे ही होंगे. Nothing's changed. कुछ भी नहीं बदला. Now, let's say, अब आप here's your chance, buddy. Let's say that God loves coconut. अब मिसाल के तौर पे हमके खुदा को कोकोनट्स पसंद है. The coconut tree, God loves coconut. And the coconut और जो कोकोनट है, represents God's righteousness. और लेट से हम ये कहें कि कोकोनट जो है खुदा की राज़बाज़ी को जाहिर करती है. But wait, I'm a mango tree. पर मैं तो मैंगो ट्री हूँ. The only thing I can produce is लेकिन मैं तो सिर्फ मैंगो ट्री से तो मैंगो ही निकलेंगे ना. the flesh can only sin. गुनाह, हमारा जो जिस्म है ना, सिर्फ और सिर्फ गुनाह ही कर सकता है. But now you hear that God loves coconuts. Okay, I'm a mango tree. अब आपने सुना है कि खुदा को तो कोकोनट्स पसंद है, पर मैं तो मैंगो ट्री हूँ. God's going to reject me as a mango tree. सो खुदा मुझे अब ऐसे मैंगो ट्री होने के नाते से रद्द कर देंगे. I've got to grow coconut. तो अब मुझे कोकोनट्स उगाने की जरूरत है. So as a mango tree, तो मैंगो का दरख्त होने के नाते से I'm going to really try hard to grow. मैं बहुत मेहनत करूंगा. Okay, I'm the tree though. मैं दरख्त हूँ. Come on, coconut! Come on, coconut! कि कोकोनट निकलो भाई. Is a mango tree going to grow a coconut? आप मुझे बताएं कि आम के दरख्त से कोकोनट निकलेगा? Is a sinner going to produce righteousness? गुनाहगार जो है कभी रासबाजी कर सकता है? No matter how hard you try, man. जितना मर्जी कोशिश कर ले अपने जिस्म की ताकत से.
I'll just try harder. मैं और मेहनत करता I'll read रहूंगा, my Bible more. अब मैं अपनी बाइबल और ज्यादा I'll पढ़ना give शुरू more कर money. दूंगा, मैं पैसा भी I'll देना pray शुरू more. कर दूंगा, दुआ करूंगा I'll ज्यादा, witness more. और मैं और ज्यादा गवाही दूंगा लोगों के Oh, साथ। come on, coconut. और कोकोनट आ जाओ, It ain't gonna happen. होगा ही नहीं। So what's the solution? तो फिर इस मसले का हल क्या है? Well, God said that a tree that does not bring forth fruit, let it be hewn down. याद है मसीह ने एक बात कही थी कि जो दरख्त फल नहीं लाता उसको क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए। You know what God wants to do with you? If you're not saved, you're a child of the devil. You're a mango tree who can only produce mangoes. You'll never produce coconuts. खुदा पता है क्या करना चाहते हैं आपके साथ? अगर आप एक मैंगो ट्री है ना, क्योंकि आप सिर्फ मैंगो ही ला सकते हैं, कोकोनट्स तो नहीं ला सकते। Chop! काट देना उसको, God wants to chop you down. यही खुदा करना चाहते हैं, उसको काट देना चाहते हैं Bye-bye, mango tree. कि मैंगो बाय बाय। God wants to start afresh with the new seed. खुदा आप एक नए तखम से क्या है, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, And by a new seed, you'll have a new birth. और इस नए तखम से पता है क्या है, एक नई पैदाइश होगी, And by a new birth, you'll have a new life. और इस नई पैदाइश से पता है कि आपकी अब एक नई जिंदगी होगी। How many of you here are trying to live the Christian life? आप में से कितनी इधर बस अपनी मेहनत से कोशिश कर रहे हैं कि मसीही जिंदगी हम खुद गुजारें, But it's hard. लेकिन बहुत मुश्किल है, You can't do it. आप कर नहीं सकते, You're controlled by sin. क्योंकि शायद गुनाह जो है कंट्रोल तो आपको गुनाह कर रहा है। And no matter how hard you try to pull your mangoes off the tree, you're continually sinning. You're committed to sin. आप जितने मर्जी मैंगोज को उतारना शुरू करें अपने दरख्त से, आपने फिर भी गुनाह करना ही करना है। You're trying to grow a coconut. हो सकता है कोशिश करें कि शायद दरख्त से कोई कोकोनट निकल आए, You're trying to live the life, आप अपनी तरफ से जिंदगी वैसी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, but you can't लेकिन आप नहीं कर सकते because you haven't had the birth, क्योंकि आपकी भी पैदाइश नहीं हुई नहीं, because you don't have the right seed. क्योंकि आपके पास सही तखम नहीं है। Have you been born again? क्या आपकी नई पैदाइश हुई है? How many birthdays do you have? आपकी कितनी सालगिरह है? And if you have been born again, is there evidence of it? और लेट्स से आप कहते हो कि मेरी नई Is पैदाइश हुई है, there fruit on your tree? क्या उसके सबूत हैं? क्या ऐसे फल हैं दरख्त पर? What is the fruit of the Spirit? मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि रूह के फल क्या हैं? Love. प्यार, I love God. खुदावन से प्यार करना, I love the brethren. भाइयों से प्यार करना। I can forgive them because I've been forgiven. मैं भाइयों को माफ कर सकता हूँ क्योंकि मुझे भी माफ किया I गया love है। God's word. खुदा के कलाम से मुझे I प्यार love lost souls. है, गुमराह लोगों से प्यार है, I love righteousness. रासबाजी से प्यार है। I love the things that God loves. जिन चीजों से खुदावंत को प्यार है मुझे भी प्यार है, And I hate the things that God hates. और जिन चीजों से खुदावंत को नफरत है मुझे भी उन चीजों से नफरत है। Love. प्यार, How about joy? खुशी। You know, some of you say you're saved, but I'll tell you the truth. आप में से कई कहते हैं कि हम नजात याफ्ता हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, How you appear anyway. जिस तरीके से आप नजर आते हैं, You look like you took a bath in vinegar this morning. And you drank lemon juice before you come to church. कि आप आने से पहले हो सकता है सिरके में से नहा के आए हैं या लेमन जूस पी के आए हैं। Where's the joy? खुशी कहाँ है? जैसे को खट्टी चीज खा के आए हैं। Where's the joy खुशी कहाँ है that you're saved? कि आप नजात याफ्ता हैं, My sins are forgiven. मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं, I get to go to heaven. मैं खुदा की बादशाही में जाऊंगा। कहाँ है खुशी? Some of you, I don't see it. कईयों में तो मुझे बिल्कुल नजर ही नहीं आती आप में से। No, maybe you don't claim to be saved. हो सकता है आप कहते ही ना हो कि आप नजात याफ्ता, ये भी हो सकता है। Love, joy, peace. I'll give you those three. प्यार हम देखते हैं, खुशी और इत्मीनान। It is well. It is well with my soul. You have real peace.
afraid to die? क्या आप मुझे बताओ मरने से डरते हो? Have you made peace with God? क्या आपने अपना खुदा के साथ इत्मीनान किया हुआ है? Two births. 2 पैदाइश How many do you have? आपके पास कितनी है? Is there proof of it? क्या आपके पास सबूत है? Where's the fruit? कहाँ है वो फल? If you're trying to produce something spiritual of the flesh, that is not going to work. अगर आप अपने जिस्म से रूहानी चीजें या रासबाजी की चीजें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कर ही नहीं सकते. You must be born again. तुम्हारा नए सिरे से पैदा होना लाजमी है. Amen. Thank you. आमीन. आइए सब हम दुआ करें. खुदा